Hello viewers, in today's class we are going to take some problems based on Bayes theorem, right? तो आज की क्लास में हम Bayes theorem से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास है कि लेट 6% ऑफ द पीपल with blood group O are left-handed, right? And 10% of those with other blood groups, right? Other blood groups are left-handed, right? 30% of the people have blood group O, right? If a left-handed person is selected at random, what is the probability that he or she will have blood group O, right? So we'll solve this problem with the help of Bayes theorem, right? तो एक बार और देखते हैं इस प्रॉब्लम को। लेट 6% ऑफ द पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के पीपल दे रखे हैं, दो तरीके के लोग दे रखे हैं जिनका कुछ का ब्लड ग्रुप जो है वो O है और कुछ का ब्लड ग्रुप जो है वो अदर देन O है, राइट? तो हम यहाँ पर इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट दैट अ पर्सन हैज़ blood group O, right? A person has blood group O और E2 event हम define कर लेते हैं कि person having blood group other than O, right? Other than O। तो हमारे पास दो तरीके के यहाँ पर people हैं। First one is the person who has blood group O and E2 are the persons having blood group other than O, right? तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो 6% पीपल हैं जो ब्लड ग्रुप जिनका O है वो लेफ्ट हैंडेड हैं, राइट? और 10% जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं जिनका ब्लड ग्रुप O से अलग है, राइट? तो 30% ऑफ द पीपल हैव ब्लड ग्रुप O, राइट? तो 30% पीपल हैव ब्लड ग्रुप O इफ अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, राइट? अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो हम एक इवेंट यहाँ पर A एज्यूम कर लेते हैं और इवेंट A है कि लेफ्ट हैंडेड पर्सन is selected, right? Left-handed person is selected, right? So what is the probability that he or she will have blood group O? तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि we have to find the probability of selecting a person having blood group O और O के लिए इवेंट हमारे पास है E1 और प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज लेफ्ट हैंडेड, राइट? सो वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। So now with the help of Bayes theorem we can write the probability of E1 by A as PE1 multiplied P of A by E1, right? And divided by P of E1 multiplied P of A by E1 plus P of E2 multiplied by P of A by E2, right? So this is the expression for Bayes theorem. अब यहाँ पर क्या है? PE1 का मतलब क्या है कि those persons having blood group O, right? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 30% of the people have blood group O. तो it means P of E1 is equal to 30 over 100. So it means selecting a person having blood group O is 30 over 100. एंड PE2 का मतलब हमारे पास क्या है कि वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो O से अलग है, राइट? अदर देन O है,
तो 30% लोग कौन हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो बाकी लोग जो होंगे वो अदर देन ब्लड ग्रुप ओ होंगे, तो वो हो जाएंगे 70/100, राइट। ओके, तो हमारे पास PE1 भी आ गया, PE2 भी आ गया। अब हमको चाहिए PA/E1। PA/E1 का मतलब क्या है? PA/E1 मीन्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और A क्या है हमारे पास? सेलेक्टिंग अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। तो PA/E1 मीन्स कि हमें we have to find the probability of selecting a left-handed person when we have already selected a person having blood group O. तो 6% of the people with blood group O are left-handed, तो PA/E1 हो जाएगा हमारा 6/100, राइट। और PA/E2 means the probability of selecting a left-handed person when we have already selected a person having blood group other than O, because E2 event जो है वो other than O के लिए है, राइट। और E1 जो है वो है blood group O के लिए। तो 10% of people are left-handed with other blood groups, right? तो ये हो जाएगा हमारा 10/100, right? So now we can substitute these four values here. So we'll get PE1 is 30/100 multiplied 6/100 divided by 30/100 multiplied 6/100 plus PE2 is 70/100 multiplied 10/100। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 30 times 6 is 180 divided by 1000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180/1000 प्लस ये हो जाएगा 700/1000, राइट। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 180/1000 डिवाइडेड बाई 180 plus 700 is 880 divided by 1000. So 10,000 and 10,000 get cancelled. So we have 180 divided by 880, right? 0 and 0 get cancelled, so we have 18/88. So this is 2 9 ja and 244. So we have 9/44. So this is the required probability that the person who is selected as left-handed is having the blood group O. अब मान लीजिए कि इसी प्रॉब्लम में हमें दिया होता कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप अदर देन ओ दिया होता। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he or she will have blood group other than O, तो तब हमें क्या करना होता? तब हमें निकालना होता P। यहाँ पर हमने E1/A निकाला, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, हमने ये निकाला। तो तब हमें निकालना होता PE2/A, राइट। तो तब हम क्या करते? तो तब हम बेस थ्योरम में का ही यूज़ करते, और हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर हम E2 लिखते और
यहाँ पर भी E2 आ जाता हमारा और यहाँ पर भी E2 हो जाता, राइट। और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता, राइट। तो केवल इतना चेंज करना होता हमें व्हेन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप अदर देन O, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं हम, PE2 आ जाता हमारा 70/100 मल्टीप्लाइड PA बाई E2 हो जाता हमारा 10/100 डिवाइडेड बाई 30/100 टाइम्स 6/100 प्लस 70/100 multiplied 10/100, right? तो this 100, 100, 100, 100 and 100 and 100, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाती, तो हमारे पास ऊपर आ जाता न्यूमरेटर में 700 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 700, तो हमारे पास हो जाता ये 700/880, so 0 and 0 get cancelled and 70/88, and this is 235 244, तो तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A आ जाती 35/44, राइट। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते। लेकिन जब हमारे पास PE1 बाई A जब हमने कैलकुलेट कर लिया है, PE1 बाई A हमने कैलकुलेट किया था 9/44, राइट। तो PE2 बाई A कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस थ्योरम को दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्या या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि PE2 बाई A को हमने बेस थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम PE2 बाई A को इस मेथड से नहीं निकालना चाहते हैं, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि हम PE2 बाई A को हम PE1 बाई A की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, PE2 बाई A can be written as 1 minus PE1 by A, right? So we have 1 minus E1 by A, we have already calculated, this is 9/44, तो 1 minus 9/44 हो जाएगा 44 minus 9/44, so this is 35/44. so see, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से बेस थ्योरम से सॉल्व किया ये देखा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं।